होता है और वो आपके आइदर और, नाइदर, नन, नाइदर, नॉर इन सब के साथ जुड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोनाउन जो कि यूज़ होगा उनके लिए दैट विल बी अ सिंगुलर प्रोनाउन। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस हैज़ टू बी नॉर, दिस हैज़ टू बी नॉर। सो अगर आपके दो जो सिंगुलर नाउन्स हैं दे आर जॉइंड विद आइदर और या सिर्फ और या नाइदर नॉर, तो आपको याद रखना है that the pronoun that has to be used for them has to be singular. The pronoun that has to be used for them has to be singular. Okay, please remember this. Neither Raj nor Rahul has done his homework. Right, neither Raj nor Rahul has done his homework. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा because it's neither nor, even though हमारे पास दो nouns जो हैं वो जुड़ रहे हैं, but still we need to remember that यहाँ पर भी has आएगा और यहाँ पर भी आप pronoun जो है वो singular use करेंगे. You will not use there, you will not use there. तो either और neither nor के अंदर ना केवल आपका जो verb इस केस में, वैसे verb तो आपका जो second subject होता है उसके अनुसार होता है, but you need to remember that we'll be using the pronoun that will be singular pronoun. ठीक है, so neither Raj nor Rahul has done his homework, तो ये आपका सही जवाब हो जाता है. Neither he or his wife has arrived. Neither he nor his wife has arrived. Right? Neither he nor his wife has arrived. She immediately quit the job in which neither the skill nor knowledge were required. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा she immediately quit the job. ठीक है, she immediately quit the job in which neither the skill nor knowledge was required. Neither skill nor knowledge was required. आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा was required, because remember I just told you the rule के neither nor के साथ अगर आपके दो या दो से अधिक nouns भी जुड़े हैं तो भी आप यहाँ पर singular ही यूज़ करेंगे, so it will be was, right? So यहाँ पर was will be the correct answer. Moving on to the second important rule, आपका second important rule है कि whenever you're using yours जो है it is usually used before ly words. जैसे आप कहेंगे yours obediently, yours sincerely, yours truly, तो जो ly वाले words होते हैं उनसे पहले आप yours का use करेंगे, otherwise you will use your. Please remember this rule, okay? जो आपका yours word है इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब आपका उसके बाद ly ending words आएंगे, तो इसके बाद अगर ly ending words आएंगे तो आप yours का प्रयोग करेंगे. अगर yours के बाद ly ending words आएंगे then only you will be using yours, otherwise you will use your. Please remember that, okay? So I'm yours obediently क्योंकि यहाँ पर ly आ रहा है, but I remain your affectionate friend, तो यहाँ पर आपका yours नहीं आ रहा है. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी सिंपल येट इम्पॉर्टेंट रूल कि आपके ly एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं उनसे पहले yours आएगा, अदरवाइज your आएगा. ly एंडिंग वर्ड से पहले yours आएगा, अदरवाइज your आएगा. सो you need to keep this in mind. थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल क्या है? थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपका हु जो है वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, whom आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट हु इज यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस, राइट? इट्स ऑलवेज यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस, while whom is always used in objective case. Subjective, that means you're acting, you're performing the acting, you're receiving the action over here in objective case. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है. This becomes important, okay? So the relative pronoun who is always used in subjective case while whom is always used in objective case. ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है that whenever we are talking about who is used in subjective case. जैसे कि अगर मैं कहूँगी who do you think was there, हम ये नहीं कहेंगे whom do you think was there, we'll say who do you think was there because that's a subjective case. और objective case में whom do you wish to address, तो these are certain things that you have to keep in mind. All right, who do you think was there, whom do you wish to address? ठीक है, तो you need to remember who is used in subjective form, whom is used in objective form. Ashok is among the few people in the world which did not blindly follow the path of other. Ashok is among the few people in the world who यहाँ पर who, because यहाँ पर you are having it in Ashoka is in the subjective form, so you need to remember that who will be the correct answer. So who will be the correct answer?
मूविंग ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल कहता है आपके जो कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस है, जैसे कि आपका हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सारे के सारे डिफरेंट सेंसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। हु और हुम को आप लोगों के लिए यूज़ करते हैं, हु सब्जेक्टिव केस में, हुम ऑब्जेक्टिव केस में आप लोगों के लिए यूज़ करेंगे। हुज जो है WHOSE वो आपको पोजेशन दिखाता है, विच आप चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, एंड दैट जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर थिंग्स एज वेल एज पीपल ओनली इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, ओनली इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, ये भी अभी आपको दिखाएंगे। सो प्लीज रिमेंबर जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे हु, whom, whose, which, that, they are actually used in different senses. They are actually used in different senses. अलग अलग तरह से इनको यूज़ करेंगे, जैसे who subject के लिए लोगों के लिए होता है, whom object के लिए लोगों के लिए होता है, whose आपका possession, whose bag is this possession के लिए होता है, which चीज़ों के लिए यूज़ होता है, the car which hit him was brown in color. That जो है that is used for things and people only in defining relative clauses. So that आपका things और people दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, and that too when you're trying to define relative clauses. So you need to keep this in mind. This becomes important. The person who phoned me last night is my uncle. The person who phoned me. So यहाँ पे subjective case में and relative clause के case में भी that का भी use कर सकते हैं. The car which things के लिए which use हो रहा है. So you need to keep this in mind. He talked on the phone for hours together, who really irritated his parents a lot. Which really irritated? यहाँ पर which होगा, who नहीं होगा, because this thing really irritated the parents. Because this thing really irritated the parents. So you need to keep this in mind. So please remember आपका who जो है subjective form में use होगा, आपका whom जो है objective form में use होगा. You need to remember that these are used for people, whose is used for possession, that जो है वो relative clauses में दोनों चीज़ों के लिए as well as लोगों के लिए use होता है, जबकि which is used for things only. So you need to keep this in mind because this is important. Okay, moving on to the fifth important rule. Fifth rule पे चलते हैं. When two or more singular nouns they are joined by and, तो आपका जो pronoun है that will be plural. So keep this in mind. अगर आपके दो या दो से अधिक, for example if I say both A and B have completed their work, right? So both A and B, so whenever you are having two or more singular nouns which are joined together by and, तो आपको इनके साथ क्या करना है? You have to use plural pronoun with them. Both Kajal and Madhu have done their homework, right? We'll not say have done her homework, we'll say their homework. That'll be the correct answer. Moving on to the sixth rule. Sixth rule important है, you need to keep this in mind, alright? And what does the sixth rule say? Sixth rule कहता है कि superlative degree adjectives जो होते हैं only, none, all, इनके साथ आप that का प्रयोग करेंगे. This is very important, please remember. ये आपका direct question आ जाता है. आपका all हो गया, so you need to remember that only, none और all के साथ we will use that. Only, none and all के साथ we will use that. So this is something that you need to remember, that with all, for example, all that glitters is not gold, and there are many other questions. एक और question हम भी practice करेंगे यहाँ पर. So please remember only, none and all. Only, none and all के साथ we will use that directly. Only, none and all के साथ we will use that directly. You need to keep this in mind. Moving on to the seventh important rule, आपका जो reflexive pronoun होते हैं, reflexive pronouns that are adding self with them, ये जो हैं they are used as an object of a verb and they refer back to the same subject. ये please याद रखिएगा. For example, the prisoner hanged himself. I can do it myself. Some people always talk about themselves. तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है, that a reflexive pronoun जो होता है जहाँ पर आप self add कर देते हैं, it is used as an object of a verb that refers back to the same subject. The prisoner hanged himself. I plan to go myself. Some people always talk about themselves. We are to be blamed ourselves. इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं.
एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर टुडे, प्लीज रिमेंबर दिस कि आपके लेट के बाद यू विल ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस, लेट हिम गो, लेट हिम डू दैट. सो लेट के बाद you will use the objective case. After let we will always use the objective case. After let we'll always use the objective case. Let him go there, let him complete his work. So after let we'll always use the objective case. You need to keep this in mind. So please do remember, this is very important. तो अब आपके 12 रूल्स प्लस 8 रूल्स, तो टोटल आपके पास 20 इंपॉर्टेंट रूल्स आ गए हैं. लेट्स क्विकली प्रैक्टिस सर्टन क्वेश्चंस. जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम लोग सेट 1 को भी अच्छी तरह से एक ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. Now pronouns, of course, we've said these are words used in place of nouns, so that is what we are talking about in terms of pronouns. And maximum questions जो आपके आते हैं वो personal pronouns से आएंगे, जबकि minimum questions reciprocal pronouns से आते हैं. Let's try to look at these questions. There are 10 important questions. Let's solve them one by one. जल्दी देखिए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा. Martin and David help one another. Martin and David help one another. Now this is a clear case of reciprocal pronouns. ये किसका केस है? This is a clear case of reciprocal pronouns. Martin and David help one another. Martin and David help one another. अब यहाँ पर what you need to remember, यहाँ पर you need to remember that because this is the case of reciprocal pronoun, तो अगर दो का यूज़ होता है तो each other का यूज़ होगा and more than two के लिए one another का यूज़ होगा. So because यहाँ पर दो लोग हैं Martin and David, therefore Martin and David help each other होगा, ना कि one another. Please remember this. So Martin and David help each other. Martin and David help each other because your reciprocal pronouns जो होते हैं, आपके जो reciprocal pronouns जो होते हैं उसमें each other दो लोगों के लिए यूज़ होता है, जबकि one another more than two के लिए यूज़ होता है. each other दो के लिए यूज़ होता है, जबकि one another is used for more than two. How you can remember, each other में 9 letters हैं और one another में 10 हैं, तो जिसमें कम है वो दो के लिए है, जिसमें अधिक है वो दो से ज़्यादा के लिए है. So Martin and David help each other. For two people you'll use each other. For more than two you'll use one another. Please remember that. One should be honest to his word in all situations. अब one जब भी आता है प्लीज़ याद रखिएगा बाकी सारे प्रोनाउन one के फॉर्म में ही होंगे. One should be honest to one's word, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर one का possessive one's हो जाता है, his word नहीं होगा, यहाँ पर one's word आएगा. So one should be possessive. one आपका indefinite pronoun है. अगर आपका sentence जो है one से start होगा तो आगे आने वाले सारे pronoun one के फॉर्म में ही होंगे. One should be honest to one's word. One's is basically आपका possessive form है one का. ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला one should be honest to one's word. Everybody, it must be admitted, has their ups and downs. अब everybody जो word है that is actually taken as singular. Everybody जो हो गया ये आपका personal pronoun है. Every, each, इसका क्या अर्थ हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है प्रत्येक, एक की बात कर रहे हैं. इसीलिए आपका noun, आपका प्रोनाउन, आपका वर्ब सिंगुलर रहेगा. इसीलिए आपका नाउन, आपका प्रोनाउन, आपका वर्ब सिंगुलर रहेगा. सो एवरीबडी, इट मस्ट बी एडमिटेड, हैज़ हिज अप्स एंड डाउन्स. अगर आपका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप मैस्कुलिन जेंडर लेंगे. सो एवरीबडी, इट मस्ट बी एडमिटेड, हैज़ हिज अप्स एंड डाउन्स हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ हिज अप्स एंड डाउन्स. और ये क्यों सही है? क्योंकि ईच एंड एवरी का अर्थ होता है प्रति, ये एक. अगर आप इसको हिंदी में करेंगे तो ये प्रति और एक हो जाएगा. तो आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए. आपके नाउन, प्रोनाउन और वर्ब किस में होने चाहिए? आपके नाउन, प्रोनाउन और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए. व्हेनेवर ईच एंड एवरी इज यूज्ड, ऑलवेज यू हैव टू यूज द सिंगुलर फॉर्म. जब भी ईच और एवरी का प्रयोग होगा आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे. जब भी ईच एंड एवरी का प्रयोग होगा आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म को यूज़ करेंगे. प्लीज़ रिमेंबर दिस. John, I and Hari are going to Australia. अब ये भी इम्पॉर्टेंट है जब आपके पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन यानी कि जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है. सेकंड पर्सन आपका जो ऑडियंस होता है, ठीक है, जो श्रोता होते हैं.
थर्ड पर्सन जो है जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउंस में अगर ये तीनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं तो 2 3 1 का ऑर्डर यूज़ होता है, ठीक है, और 1 2 3 का प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ होता है। तो 2 3 1 का सिंगुलर के लिए और 1 2 3 का प्लूरल फॉर्म के लिए, या किसी क्राइम, मिस्टेक या एक्सेप्टेंस के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि जॉन एंड हरी दोनों जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो वैसे भी आपका 3 और 1 यूज़ होगा। सो जॉन, हरी एंड आई आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। जॉन, हरी एंड आई आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। आपके पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर ये सिंगुलर हैं तो 2 3 1 का ऑर्डर फॉलो होगा, लेकिन अगर ये प्लूरल हैं तो 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो होगा। अवेल ऑफ द फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज़। अब यहाँ पर प्लीज़ याद रखिएगा कि अवेल के साथ आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आपको याद रखना है अवेल योर सेल्फ, और अगर कोई आपका मेंशन नहीं है कि क्या आपका आ सकता है, तो यू विल ऑलवेज यूज़ द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अवेल योर सेल्फ ऑफ द फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज़, अवेल योर सेल्फ, ठीक है। तो जब भी आपका अवेल आएगा, अवेल इट योर सेल्फ, तो अवेल के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। प्लीज रिमेंबर दैट इज इंपॉर्टेंट। अवेल के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। इफ द सब्जेक्ट इज नॉट देयर तो हम सेकंड पर्सन के बारे में बोलते हैं, तभी वी आर सेइंग योरसेल्फ, तभी वी आर सेइंग योरसेल्फ। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट? दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। Ramesh possesses all those good qualities which every ideal student should possess. अच्छा, अब आइडल के कई सारे कंफ्यूजिंग होते हैं। एक आपका आइडल, दैट इज IDLE, वो होता है वेला। फिर आपका आइडल, IDOL, जो कि होता है आपकी मूर्ति। फिर होता है आपका आइडियल, दैट इज दिस पर्टिकुलर आइडियल, यानी कि एक तरह का आदर्श। रमेश possesses all those good qualities which every ideal student should possess. अब प्लीज़ याद रखिएगा, ऑल के साथ अभी अभी हम लोगों ने रूल में पढ़ा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल के साथ आप हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। सो रमेश possesses all those good qualities that every ideal student should possess. अभी मैंने आपको रूल बताया था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल जो है इसके साथ, ऑल हो गया, नन हो गया, इनके साथ आप हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। कुछ लिस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये है आदर्श, ये है वेला, ये है मूर्ति, और ऑल के साथ हमेशा दैट का प्रयोग होगा। सो ऑल हो गया, नन हो गया, द सेम हो गया, द लिटिल हो गया, द फ्यू हो गया, एवरीथिंग हो गया, द ओनली हो गया, समथिंग, नथिंग, इन सब के साथ दैट विल बी यूज्ड। इन सब के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? इन सब के साथ आप दैट का प्रयोग करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कॉन्डक्ट। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कॉन्डक्ट, ठीक है। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कॉन्डक्ट। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव विल बी यूज्ड आफ्टर अ गेरेंट। तो यहाँ पर आपका बीइंग जो है ये गेरेंट है, तो इससे पहले आप क्या करेंगे? इससे पहले आप पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाता है। माई बैग, माई बॉटल, माई पेपर, माई पेन। तो ये आपको याद रखना है। द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कॉन्डक्ट, क्योंकि गेरेंट से पहले आपका क्या आता है? गेरेंट से पहले आपका पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ये भी एक रूल है, इसे आप याद रखिएगा। गेरेंट से पहले जो वर्ब का ING फॉर्म होता है, उससे पहले हमेशा पोजेसिव नाउन यूज़ होगा, जैसे कि माई, आर, योर, हिज, देयर। इसको आपने ध्यान में रखना है। सो द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर, माई बीइंग, तो गेरेंट से पहले हमेशा पोजेसिव फॉर्म यूज़ होगा। गेरेंट से पहले हमेशा पोजेसिव फॉर्म यूज़ होगा। प्लीज़ रिमेंबर दैट। गेरेंट से पहले क्या होगा? गेरेंट से पहले हमेशा possessive form यूज होगा। प्लीज रिमेंबर दैट। Such rules do not apply to you and I. Such rules do not apply to you and I. अब यहाँ पर प्लीज रिमेंबर, एक preposition अगर आपका पहले आ रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे, बिकॉज यू आर हैविंग अ preposition to over here। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता
जाता है. Such rules do not apply to you and me. Such rules do not apply to you and me. So what will be the correct answer? The correct answer will be such rules do not apply to you and me. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है. Such rules do not apply to you and me. क्योंकि prepositions के बाद objective case यूज़ होगा, prepositions के बाद objective case यूज़ होगा. you आपका subjective objective case दोनों में सेम रहता है, लेकिन me जो है वो objective case है I का. ठीक है, me जो है वो objective case है I का. So this is something that you need to remember. Moving on to the last question for today. The jury has given their verdict. अब jury जो है ये collective noun है, और अगर collective noun जो है वो एक ही डायरेक्शन में आंसर दे रहे होते हैं, उनमें कोई विवाद नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि उसके तब हम लोग उसको एक सिंगुलर की तरह चूज़ करते हैं. तो द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट. द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट. देयर क्योंकि प्लूरल हो जाता है, तो इसलिए आप देयर नहीं यूज़ करेंगे, आप इट्स यूज़ करेंगे. द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. तो इस चीज़ को आपने डेफिनेटली ध्यान से देखना है, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा. Along with that, revise those important 20 rules. हम एक लास्ट सेशन करेंगे which will be practice set 2, जिसके अंदर बाकी सारे के सारे जो important concepts हैं they'll all be covered. इसके अलावा you don't really have to worry a lot about pronouns, क्योंकि इन्हीं तरह के questions आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो one वाला याद रखिएगा, all के बाद that वाला याद रखिएगा. These are all important things. Preposition के बाद objective case आ रहा है, all के साथ that use हो रहा है. These are all important things that you need to remember. Let के बाद objective case आ रहा है, let him do that. So these are all important things, and even important things that we've discussed in the first session. इन सबको अच्छी तरह से thoroughly do make it a point that you're revising. If in case there are any doubts, please do bring that forward. Thank you.